Hello student, welcome to this one shot revision. In this one shot, we will cover whole chapter of decimal within 1 hour. So let's begin. So I have divided this chapter into 6 parts. Let us see one by one. So first of all, decimal introduction. In decimal introduction, we will see how to write decimal, define decimal and how to read the decimal number. Second one is 100th and 10th and 100th place. 10th and 100th, in this we will see place value chart. The third one is decimal in number line. So in this we will represent how to represent decimal number on number line. As we see in the whole number, how to represent it. So in this we will see how to represent decimal number on number line. Next one is conversion. So in this we will convert decimal to fraction and fraction to decimal. So we will learn how to convert decimal number to fraction and fraction to decimal. Next one is comparing decimals. So in comparing decimals, we will see how to compare the two decimal numbers which is given, which is greater than, which is smaller. So we have to compare this. Moreover, we will also see in this how to use decimal number for money, length and weight. Next one is operations on decimal. So we will see majorly two operations, that is addition and subtraction. So let's start. So as you can see here, the decimal number is a number which has two parts, right? One is whole number and another one is a fractional part. So if we see an example, let us take an example of 46.8, right? So in these you can see 46 represents whole part and 8 represents fractional part, right? So in decimal number, both the parts are separated by a decimal point. So as you can see here, this decimal point is separating the whole part and the fractional part, right? If we see another example, let us take an example of 0.3, right? So if we take 0.3, you can say that this 0, ठीक है, ये 0 represent करता है whole part को, right? And this 0.23, right? 0.23 represent करता है decimal part और fractional part को, right? Now next one is, let us take an example of 46.89, right? So this 46 represent whole part and 89 represent decimal part, right? And it is separated by this point. So here let us take an example, let us take the 10th place, okay? So in the 10th place, as you can see, draw a circle. To understand the 10th place, right, सबसे पहले we will draw a circle, ठीक है, and it is divided into 10 equal parts. उसको 10 equal parts में हमने divide कर दिया, right? अब हम देखेंगे कि if I want to represent this shaded portion, ठीक है, ये shaded portion को मुझे represent करना है in the fractional form, so I will represent by 1/10, ठीक है, मैं easily इसको 1/10 लिख सकता हूँ, okay? Now अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, सो 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1. सो दिस इज द सेम थिंग, 1/10 इज सेम एज 0.1. अब नाउ हाउ टू रीड इट, एज यू कैन सी हियर यू कैन रीड इट एट 0.1, राइट? इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, राइट? नेक्स्ट अगर हम देखें, सो 10th प्लेस में अगर एक और एग्जांपल से समझे तो हाउ टू डिफाइन द 10th प्लेस. 10th प्लेस को हमें डिफाइन कैसे करना है, राइट? सो द फर्स्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट द 10th प्लेस एंड इट इज अ 10th पार्ट ऑफ अ होल नंबर, राइट? सो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है राइट हैंड साइड में, राइट, राइट हैंड साइड में पहला नंबर होता है, उसको हम कहते हैं 10th प्लेस, राइट? और उसको कैसे रीड किया जाता है, 34, राइट? इसको हम पढ़ेंगे 34.7, 34.7 इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, राइट? अब देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट दिस 10th प्लेस इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 46.8. सो दिस 0.8, राइट, दिस 8 रिप्रेजेंट 10th प्लेस. अब बहुत ध्यान से देखना, डोंट कंफ्यूज विद टेंस एंड 10th. सो यहाँ पे TENTHS 10th place है, so this is a 10th place. After that you can see here decimal number, right? Decimal point, right? अब decimal point के just आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो you will find
अ वंस प्लेस और यूनिट प्लेस, ठीक है, सो इसको यूनिट प्लेस कहा जाता है, एंड द सेकेंड टर्म इज रिप्रेजेंटेड एज टेंस प्लेस, राइट, सो दिस इज टेंस, TENS टेंस है, और ये 10th प्लेस है, ठीक है। अगर इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इनटू दिस प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली जो 0.8 है, सो 0.8 यानी 8 यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे, राइट, उसके बाद आप देख पा रहे हो 6, जो 6 है वो वंस वाले प्लेस पे आएगा, जो 4 है, सो 4 विल बी हियर टेंस वाले प्लेस पे, राइट, सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस 46.8 ऑन प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 100th प्लेस, ठीक है, 100th प्लेस का हम एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू टेक अ स्क्वायर, और उस स्क्वायर को हमें 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, इस तरीके से हमने 100 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। नाउ उसको 28, राइट, यहाँ पे हमने 28 स्क्वायर्स को 28 स्क्वायर्स को हमने शेड कर दिया। इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली बाय 28/100, यानी कि आउट ऑफ 100 हमने 28 स्क्वायर्स को यहाँ पे शेड कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म, सो सेम थिंग है। सो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इनटू डेसिमल फॉर्म, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सो 28/100 इज रिटन एज 0.28, 0.28, यहाँ पे हम 0.28 नहीं बोलेंगे, राइट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ 100, ठीक है। अगर हम 28 बोलते हैं तो देयर मे बी चांसेस कि हम कंफ्यूज हो जाए कि हम 28 नंबर की बात कर रहे हैं, बट इट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ 100, तो हम यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम 0.28 ऐसा हम उसको बोलेंगे, राइट, वी विल रीड लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे देखें कि हाउ टू डिफाइन द 100th प्लेस, डिफाइन कैसे करेंगे, सो सेकेंड नंबर आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंट द 100th पार्ट ऑफ होल नंबर, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट 10th प्लेस, राइट, सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट द 100th प्लेस, राइट। सो दिस इज ऑल्सो बी रिटन एज 1/10th, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो बी रिटन एज 1/100th। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, एंड लेट अस टेक बिफोर एन एग्जाम्पल, इसको हम यूनिट प्लेस दैट इज वंस, और इसको हम टेंस बोलेंगे, राइट। रीड इट एज 13.95, यू कैन नॉट कॉल 95 कहोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। इफ वी से 13.95 तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस 95 रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ समथिंग, ओके, तो इसलिए हम उसे डिजिट बाय डिजिट बोलते हैं, राइट। अगर हम एक और चीज यहाँ पे देखें, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट एक्सपांडेड फॉर्म में अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो हाउ आई कैन राइट, राइट, तो हम देखें तो यहाँ पे जो 13.95 है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, सो मैं ये जो 0.9 है, राइट, ये 0.9 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस ये जो 5 वाला पार्ट है, राइट, जो 100th प्लेस पे है, इट कैन बी रिटन एज 5/100, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मोर ओवर अगर हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1, वंस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, और इसको अगर आप देखोगे, सो 1 because of this, and it is on 10th place, so it is written as multiply by 10, so this is how you can represent, ठीक है, इस तरीके से आप एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, राइट। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन द टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिटन हियर, राइट, ये पॉइंट यहाँ पे, सो फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट जो 10th प्लेस पे है वहां पे 1 है, तो हम यहाँ पे 10th प्लेस पे 1 लिख देंगे। जो सेकेंड डिजिट है आफ्टर डेसिमल वो 2 है, सो उसको हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। नाउ इफ यू सी इन द दिस साइड, राइट, सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो फर्स्ट डिजिट है वो वंस होता है, तो इट इज रिटन हियर, एंड द सेकंड डिजिट इज 2 विच इज 10th प्लेस पे है, एंड द थर्ड डिजिट इज इन 100th प्लेस, तो वहां पे ये 4 आ जाएगा। so, this is how you can represent this number on place value table, ठीक है, राइट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे हम देखते हैं विद
with a given place value chart write the number in a decimal form, right? तो ये place value chart पे ये दिया हुआ है, you have to write this number into decimal form. very easy, right? so यहाँ पे definitely यहाँ पे 10th start हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे 10th 100th ये सब start हो गया, and यहाँ पे आप देखोगे तो 1s 10s and 100, ठीक है? तो definitely exactly इसके यहाँ पे आप लिख देंगे point. clear है? now this can be written as 8, this can be written as 5, here it is written as 3, 6 and 4 and 4. So this is how you can represent this number in the decimal form. And how to read it? 463.85. ठीक है, काफी बुक्स में इस तरीके से भी लिखा है 463 and 85. So instead of point you can also use and. ठीक है, so very simple question. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. So in the next section you can see here number lines. Okay, तो number line क्या होता है? What is number line? So number line is a visual representation of a number on straight line. कोई भी एक straight line है, right? वहाँ पे हम अगर visual representation करें numbers का तो उसको हम कहते हैं number line. So there are two number lines basically. एक होती है vertical number line and one is horizontal number line, right? बहुत ज़्यादा आपने use किया होगा horizontal number line. So we can use one by one. हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट हमने जो ज़्यादा यूज़ किया दैट इज़ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन. तो आप जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन, वो हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन से ही समझेंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हाउ टू शो 4.2 ऑन डेसिमल नंबर. ठीक है, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट 4.2. तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे दिस 4.2, जो ये 4.2 है, राइट? सो इट इज बिटवीन 4 and 5, राइट? 4.2 यानी 4 से वो बड़ा है एंड 5 से छोटा है, राइट? सो स्मॉलर देन 5 एंड ग्रेटर देन 4. सो इट विल बी बिटवीन 4 and 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 4 and 5 हियर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 4 and 5 एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग द विच पार्ट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द 10th part. तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट. एज यू कैन सी हियर हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट? सो कैसे डिवाइड करेंगे? सो 4 इज रिटन एज 4.0, राइट? हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4.0, राइट? सो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड अप टू 4.9. इस तरीके से 10 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया. ओके, नाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट 4.2, right? So 4.2, ये this is the 4.2 and this is how you can represent a decimal number on number line. Now let us take another example that is 48.85. यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 100th place भी है, right? So 100 place भी है. So now ध्यान से अगर आप if you see here, so 48.85. So this number is less than 48.90 भी लिख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर टेक एन एग्जांपल, अगर हम बात करें 2, राइट? सो 2 के आगे, राइट? 2 के आगे मैं कितने भी जीरोस ऐड कर दूं, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, है ना? अगर 2 के पीछे मैंने जीरोस ऐड करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ये 2 विल बिकम 20 एंड अगर एक और जीरो ऐड कर दिया तो वो 200 हो जाएगा. ठीक है, सो अगर हम सिंपल होल नंबर लेते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम कितने भी जीरो ऐड करते जाएं तो वहां पे वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा. सिमिलरली अगर पॉइंट के बाद, राइट? सिमिलरली अगर हम पॉइंट के बाद बात करें, लाइक लेट अस टेक 48.9 है, राइट? सो 9 के बाद अगर मैं एक जीरो लगाऊंगा, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा. इट इज रीड एज 48.90. अगर मैं एक और जीरो ऐड कर दूं लाइक 48.900, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इट इज कॉल्ड एज 48.900. तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटन 48.90. So definitely 48.85 is less than 48.90 and it is greater than 48.80. ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, so 48.80 is less than 48.85, less than 48.85 and this number is less than 48.90. ठीक है, so ये नंबर अगर हम बात करें
ये इससे बड़ा है एंड ये इससे छोटा है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द नंबर 48.8 हियर एंड 48.90 हियर. तो इन दोनों के बीच में यू विल गेट 48.85. ठीक है. सो अगेन वी विल डिवाइड this into 10 equal parts. So if you divide this into 10 equal parts, you will get something like this. So 48.80, 48.82 and इस तरीके से 48.89. And here you will easily see कि 48.85 यहाँ पे है. So this is how you will represent decimal number on number line. I hope यहाँ तक आपको clear होगा. Now let us see the conversion. ठीक है. सो इन कन्वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इजी टू राइट द फ्रैक्शन विथ 10 एज अ डिनोमिनेटर इन द डेसिमल फॉर्म. अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है, राइट, एग्जाम्पल में बताऊं, सो 4/10, राइट, और उसके मल्टीपल में, लाइक मल्टीपल नहीं कहूंगा, पावर्स ऑफ 10, राइट, सो 4/100. अगर इस तरीके से नंबर है, डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर में कोई नंबर है, तो आप इजीली इसको डेसिमल में लिख सकते हो. दिस इज रिटन एज 0.4. ठीक है. सो यहां पे एक जीरो था, तो एक नंबर यहां पे, अगर पॉइंट यहां से ऐसे जंप हो गया, 1 प्लेस जंप करेगा. हियर यू विल सी 2 zeros आर देयर. डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, राइट, 1 and 2 zeros आर देयर. तो यहाँ पे क्या करेगा, जो डेसिमल नंबर है ऐसे 2 जंप करेगा. सो यू विल गेट 0.05. यहाँ पे से ऐसे 2 जंप किया तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, राइट. सो अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो बहुत इजीली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. अब आप कहोगे कि अगर 40/7 होता तो क्या करते. सो ये आप हायर क्लासेस में देखोगे. अगर इस तरीके से नंबर है, सो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ नंबर हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि 10 और 10th की पावर में कोई भी डिनोमिनेटर है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं. मोर ओवर, ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 10s में हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 में हो, या 5 या 2 जिसको इजीली 10 में कन्वर्ट किया जा सकता हो, उसको हम डील करेंगे, राइट. सो एक एग्जांपल देखते हैं, राइट. अगर वो नंबर 10 नहीं है, राइट, केस 2, हमने केस 1 देख लिया, अगर 10 है, केस 2 क्या कहता है, केस 1 कहता है, केस 1 ये कहता है कि अगर 10 है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 0.4, राइट, 0.04, इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. केस 2 ये कहता है कि अगर वो 10 नहीं है, इट इज नॉट, डिनोमिनेटर इज नॉट 10, तो क्या करेंगे. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 10, राइट. एग्जांपल से देखते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, 12/5, राइट. सो डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 10. ठीक है. कैसे. सो टू मेक द डिनोमिनेटर 10, क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें, राइट. अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे यहाँ पर, तो 5 2 10, हमें 10 मिल गया. बट अगर हम, ये रूल ये कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, राइट. तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमें मिल जाएगा 24/10. ठीक है. 24/10. अब 24/10 इजी है, ठीक है, एक जीरो है, एक जीरो है, तो एक जंप करेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.4. 2.4 इज अवर आंसर. क्लियर है यहां तक. चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 3/2, राइट. अगेन यहां पे डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, तो हमें 10 बनाना पड़ेगा. वी हैव टू मेक इट 10. सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 5. तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 न्यूमरेटर में भी करेंगे, राइट. तो क्या होगा, न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 15 और डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 10. नाउ इट इज 10, इजीली यू कैन राइट इट एज 1.5. सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल. ठीक है. अब देखते हैं कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. बहुत इजी है, राइट. सो फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यू हैव अ डेसिमल फॉर्म, उसको p/q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है. डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1, राइट, वेयर द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 1. एग्जांपल लें तो यहाँ पे 2.5, राइट, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, तो हम मान के चलते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 है. नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, सेकेंड स्टेप क्या कहता है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10. ठीक है. तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, राइट. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 10 एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, सो
यू विल गेट 25/10। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। सो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5। ठीक है, सो 5 से कटेगा ये, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 5/2 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो इट इज रिटन इन द p by q फॉर्म। सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। क्लियर है? क्या किया हमने फर्स्ट स्टेप में? क्या किया हमने? इसको 2.5/1 लिख दिया, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? वी हैव मल्टीप्लाइड विद 10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड देन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने जितना कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। सो वी विल गेट 5/2। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि इंस्टेड ऑफ दिस अगर कोई ऐसा नंबर होता जिसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 2.25 है, सपोज 2.25, तो क्या करते हैं? यहाँ पे भी सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, इन दिस वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ओके, 100th प्लेस पे भी एक नंबर है और 10th प्लेस पे भी एक नंबर है, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप एक और चीज पूछ सकते थे कि सर इंस्टेड ऑफ दिस 2.50 होता तो क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? नहीं, तो यहाँ पे 0 है ना, सो 0 जितने भी ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला। ठीक है, सो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, वो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो वो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, राइट, और हम 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और डाउट आएगा कि सर 2.505 होता तो क्या करते? राइट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन नंबर हैं, 2.505, 2.505। ठीक है, 3 नंबर हैं। सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इस तरीके से 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज हाउ यू विल सिंप्लीफाई इट एंड गेट इनटू p by q फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी ले ली जो भी आपको डाउट हो सकता था। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग डेसिमल। सो केस 1 देखते हैं कि इन केस 1 एज यू कैन सी हियर होल नंबर आर डिफरेंट। ठीक है, सिंपल सा केस है कि ये जो होल नंबर वाला पार्ट है ना वो आपका डिफरेंट है, तो आप देख के बता दोगे, दैट इज 42, राइट। 42 इज स्मॉलर देन 423। तो पूरा का पूरा डेसिमल नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि 42.875 इज लेस देन 423.95। तो अगर आपने सिर्फ होल नंबर देख लिया एंड होल नंबर आर डिफरेंट, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, राइट। क्लियर है? बट सेकंड केस ये है कि अगर होल नंबर इक्वल हो, एज यू कैन सी हियर, अगर होल नंबर इक्वल हो 23 तो हमें क्या करना पड़ेगा? आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, सो डेसिमल पॉइंट हमें मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेसिमल है तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी 10th प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद हम देखते हैं 10th प्लेस इज 7, और यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो 10th प्लेस इज 8। कौन बड़ा है, 7 या 8? 8 इज ग्रेटर, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, इंस्टेड ऑफ दिस 23.75 है और दूसरा नंबर है आपका 23.78, ऐसा हो सकता था। तो इन दिस यू कैन सी कि यहाँ पे 10th प्लेस भी सेम है। ठीक है, होल नंबर सेम है तो हम जाएंगे 10th प्लेस के पास कंपैरिजन करने के लिए कि सर आप दोनों में से कौन बड़ा है। तो ये कहेंगे कि हम दोनों ही 7 है, तो हम दोनों ही सेम है, तो आप बता नहीं सकते, तो आप जाएंगे 5 के पास, 100th प्लेस के पास जाएंगे आप, राइट। सो 100th प्लेस के पास जाएंगे तो ये कहेंगे हम तो 5 है, और ये 8 कहेंगे कि हम तो जो 100th प्लेस के पास आप यहाँ पे जाओगे तो ये कहेगा हम तो 8 है। तो यू विल सी कि 5 इज लेस देन 8। ठीक है, 100th प्लेस पे हम गए कंपैरिजन के लिए, राइट। सो हमने देखा कि 5 इज लेस देन 8, दैट मीन्स कि दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है 23.6 है यहाँ पर एंड दूसरा 65 है
और यहाँ पे 23.75 है, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा? सो हम वही रूल फॉलो करेंगे, फर्स्ट हम होल नंबर के पास जाएंगे, सर जी आप दोनों ही सेम है तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बोथ आर इक्वल, सो वी विल मूव ऑन टू 6, ठीक है। 10th प्लेस के पास चले गए, तो 10th प्लेस ने कहा कि भाई 6 इज लेसर देन 7, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, इवन दो यू विल फाइंड कि 5 और 500th प्लेस पे दो सेम वैल्यू है, हम आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। हम यहीं पे रुक जाएंगे कि यस डेफिनेटली 6 इज लेसर देन 6 इज स्मॉलर देन 7, सो दैट मीन्स 6 इज लेसर देन 7, तो ये पूरा का पूरा नंबर 23.65 इज लेस देन 23.75। क्लियर है यहाँ तक? मैंने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। नाउ यूज ऑफ डेसिमल, राइट। तो अगर हम यूज ऑफ डेसिमल की बात करें, सो वी आर यूजिंग डेसिमल जनरली, मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, जनरली कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मनी के रिलेटेड यूज करते हैं, लेंथ के रिलेटेड यूज करते हैं एंड वेट के रिलेटेड यूज करते हैं। इन तीन जगह पे हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सो मनी में, तो मनी में कैसे? लाइक आपके पास रुपीज है, राइट, रुपीज और पैसा में कन्वर्जन करना है तो वहां पे हम जनरली यूज करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इफ यू वांट टू राइट 25 पैसा इन डेसिमल फॉर्म, सो 25 पैसा को डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? एज वी नो दैट कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा है, राइट। हमें पता है कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा है, तो अगर हमें 25 पैसा को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैसा के टर्म में चाहिए रुपी, राइट। सो 1 पैसा इज रिटन एज 1 बाय 100, 1 बाय 100 रुपीज, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ हमें 1 पैसा नहीं चाहिए, हमें 25 पैसा चाहिए, राइट। सो 25, फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 25 बोथ द साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 पैसा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 25 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 रुपीज, राइट। When you multiply 25 with 1, you will get 25 पैसा, ठीक है, 25 पैसा मिल गया। नाउ अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज रिटन एज 25 बाई 100 रुपीज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हमारे पास दो चॉइस है, हम इसको कैंसिल आउट करके फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें डेसिमल में लिखना है, एंड डेफिनेटली दो जीरो आर देयर, 2 zeros आर देयर, सो यहाँ पे ऐसे पॉइंट 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, सो यू कैन इजिली राइट 0.25 रुपीज, ठीक है। यूनिट में गलती ना हो, सो 1 पैसा 25 पैसा is equals to 0.25 rupees, ठीक है। Now let us take, okay, so this is how we will done. Now let us take an example of length, ठीक है। लेंथ है तो एक रानी है, the height of रानी, right, this is रानी and height of रानी is 175 centimeter, then what will be her age in, what will be her height in meters, ठीक है। हाइट में उसकी अगर मीटर्स में हाइट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर कितना होगा? सो एज वी नो दैट, ठीक है, कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बट हमें यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, सो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर के टर्म में लिखेंगे। सो 1 सेंटीमीटर इज रिटन एज 1 बाई 100 मीटर। 1 बाई 100 मीटर क्यों आया? बिकॉज मैंने इस 100 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो 1 बाई 100 मीटर आ गया। नाउ हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 बाई 100 मीटर आ गया, हमें कितना चाहिए? 175, तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 175 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 175 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 175 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। नाउ सिंपली 175 लिख सकते हैं, बिकॉज 1 you multiply with 1 you will get the same value, ठीक है। so 175 is equals to what? 175 by 100, right? तो यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो you will find कि 2 zeros are there in the denominator, तो ये दो जंप करेगा, ठीक है, दो जंप करेगा 1 and 2, so it is written as 1.75, क्लियर है। एंड यूनिट इज मीटर, आप यूनिट नहीं भूल सकते, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट। सो यूनिट इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट 175 into centimeter, 175 centimeter into meter, it is written as 1.75 meter, clear है। चलिए,
So if the weight of a rice box is 4725 gram, that is 4725 gram, then what is the weight in kilogram? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो पॉइंट में आ ही जाएगा। सो इन्होंने इनडायरेक्टली पूछा है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, राइट। सो इन चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, सो इफ वी सी हियर कि 1 kg इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, राइट। हमें अगर ये पता है, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम हमें पता है। सो 1 ग्राम इज रिटन एज 1/1000, 1/1000 यहाँ पे kg आ जाएगा, ठीक है। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg आ गया, राइट। नाउ यू विल मल्टीप्लाई 4725 विथ बोथ LHS एंड RHS। तो कैसे लिखेंगे हम, डायरेक्टली लिखते हैं, एक स्टेप यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। 4725 ग्राम, जब हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले पार्ट में भी। सो यू विल गेट 4725/1000, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया। नाउ यहाँ पे kg आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 zeros आर देयर इन द डिनोमिनेटर, तो ये 3 बार जंप करेगा, 1 2 एंड 3। तो हम लिख सकते हैं इसको 4.725। यहाँ पे 4.725 नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आते हैं कि एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट बिफोर यू शुड नो बिफोर डूइंग द एडिशन, ठीक है। सो ऐड द डेसिमल नंबर एज वी कैन ऐड देम एज होल नंबर, ठीक है। जैसे होल नंबर में आप ऐड करते हो वैसे ही आपको डेसिमल नंबर को ऐड करना है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द डेसिमल विल रिमेन एट द सेम प्लेस एज इट वाज इन द गिवन नंबर, ठीक है। सो कोई भी नंबर दिया गया है, लेट अस टेक कि मैं एग्जांपल के तौर पे 42.37 ले लेता हूँ, राइट। सो 42.37 है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, वो ड्यूरिंग द एडिशन, ठीक है, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम चलिए थोड़ा सा पॉइंट को हम शिफ्ट करके 4.273 लिख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये 42.37 है तो नंबर हमेशा वहीं रहेगा, डेसिमल पॉइंट अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करेगा। वाइल एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर सेकंड थर्ड पॉइंट ये कहता है, लाइन अप द डेसिमल पॉइंट इन ईच नंबर वाइल राइटिंग, ठीक है। तो हम कभी भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले हम एडिशन की बात कर लें। सो यू हैव टू लाइन अप द पॉइंट इन सच अ वे, इस तरीके से लाइन अप कर देना है कि वो हमेशा एक ही लाइन में रहे, राइट। सो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए वाइल एडिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इफ आई हैव अ नंबर, ठीक है, यू हैव टू ऐड 22.3 एंड 34.1, इसको ऐड करना है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपने फर्स्ट नंबर लिख दिया ऐसे 22.3, ठीक है। अब एडिशन में आप कोई भी ऊपर या नीचे लिख सकते हो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। एडिशन आप 4+2 करो या 2+4 करो, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो 34.1, सो यहाँ पे पहले तो आप डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिख दो, ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना हो। नाउ इट इज रिटन एज 1, राइट, एंड यू कैन राइट इट एज 3 एंड 4, ठीक है। नाउ जस्ट ऐड इट, ठीक है, सिंपल ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पॉइंट लाइन अप एक ही लाइन में होगा ये पॉइंट, ठीक है, एक ही लाइन में होगा, राइट। 2 + 4 6 एंड 5, सो आंसर इज 56.5, राइट। सो एक और एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड, उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर है 1.234 और सेकंड नंबर है 4.2। अगर ये सम आपको आ गया तो आपको डेसिमल में सारे सम आ जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टर्म लिखते हैं 1.23 एंड 4, ठीक है, हमने लिख दिया। नाउ क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट को हम इसके जस्ट नीचे लिख देंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 4 इज रिटन हियर एंड 1 इज रिटन हियर। अच्छा, ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट था सिर्फ, ठीक है। सो 4.1 इज अ डेसिमल नंबर। नाउ इफ यू ऐड इट, अगर आप इसको ऐड करते हो, आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि पॉइंट के बाद अगर आप राइट हैंड साइड में जीरोज ऐड करते हो तो उसकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 + 1 दैट इज 3 पॉइंट, और पॉइंट एज इट इज जो लाइन अप करना है, एंड 5। सो योर फाइनल आंसर इज 5.3
334 is your final answer. I hope it is clear. This is how you will do addition. ठीक है. Now let us see an example of subtraction. ठीक है. तो चलिए, जैसे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे एडिशन में, वैसे ही कुछ पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, लाइन अप देम. ठीक है, लाइन अप करना है. फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके डेसिमल पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए. सेकंड टर्म है कि जैसे आप होल नंबर में बोरो करते थे, राइट, सब्ट्रैक्ट करते थे, सिमिलरली आपको वैसा ही करना है. एंड थर्ड पॉइंट इज कि लाइन अप द डेसिमल नंबर इन आंसर ऑल्सो. ठीक है, सो आंसर में भी आपको लाइन अप करना है. एंड अगेन द फोर्थ पॉइंट आई विल ऐड कि आपको चेंज नहीं करनी है पोजीशन. जैसा हम एडिशन में भी मैंने कहा था कि पोजीशन डेसिमल की चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट. सो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सब्ट्रैक्ट 423.86 फ्रॉम 402.10. ठीक है, यहाँ पे 402 में से हमको 243.86 सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस नंबर. ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते, आपको बताया जाएगा कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. वैसे ही आपको करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे कहा गया कि आपको 402.10 में से 243.86 सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पे ऊपर नीचे चेंज नहीं हो सकता, जो क्वेश्चन में दिया है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 402.10 इज रिटन इन द अपर पार्ट. ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा. उसके नीचे सो लोअर पार्ट में क्या लिखेंगे हम, पहले पॉइंट को एज इट इज पॉइंट लिख देते हैं नीचे ताकि कोई भी गलती ना हो. एंड इट इज रिटन एज 86 और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा 2, 4 एंड 3, राइट. एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. अब सिमिलरली जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन में करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये दिस इज 0, सो 0 में से 6 नहीं जाएगा, सो वी विल बोरो. तो ये हो जाएगा 0 और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10. सो 10 माइनस 6 यू विल गेट 4. यहाँ पे 0 है, राइट. सो 8 तो नहीं कैंसिल आउट हो पाएगा, तो हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10. तो ये हो जाएगा आपका 2. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. सो ये 0 था इसलिए 10 माइनस 2 10 माइनस 8 दैट इज 2. तो यहाँ पे पॉइंट एज इट इज उस जगह पे आ गया. सो दिस इज 1. ठीक है, यहाँ पे 1 है. ओके, तो यहाँ से हम लेंगे बट इसके पास तो है ही नहीं, दिस इज 0 है ना. तो ये यहाँ से लेगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ से जब कैरी यहाँ पे बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा. यहाँ से वापस हम बोरो करेंगे इसके पास तो ये 11 हो जाएगा. 11 माइनस 3. ठीक है, सो 11 माइनस 3 इज 8 हो जाएगा. 9 माइनस 4 दैट इज 5 हो जाएगा. एंड 3 माइनस 2 that is 1 हो जाएगा. So your final answer is 158.24 is your final answer. This is how you have to do subtraction in decimal. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. तो लेट अस टेक कि यहाँ पे कोई नंबर है 42.37 और उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.01. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए, अगर कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए. ठीक है, सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट यू विल राइट, हाउ यू विल राइट, राइट. सो 42.37 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, राइट. इवन दो यहाँ पे 0 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड 0, 1. सो जस्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हाट विल यू गेट, आपको मिलेगा 7 माइनस 1 दैट इज 6, 3 माइनस 0 दैट इज 3, पॉइंट एज इट इज. और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0, आप इसको भी 0 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, डेसिमल नंबर के इस तरफ आप कितना भी ऐड करते जाओ, राइट हैंड साइड में कोई ज़्यादा वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है. ठीक है, हाँ, डेसिमल और इसके बीच में अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट दिस आंसर. सो अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ यू विल डू. ठीक है, ऑलवेज अ विनर स्टूडेंट. हमेशा कोशिश करते रहो नई चीज़ें सीखने के लिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, feel free to ask in comment section. Thank you very much.